بالخصوص استاد الطبا محترم جناب حکیم پروفیسر محمد یعقوب اطہر صاحب کو کہ آپ دور سے وقت نکال کر تشریف لائے. تمام انتظامیہ کی طرف سے، اطباء کرام کی طرف سے آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے. آپ اسی طرح علم کے خزانے وہ بکھیرتے رہیں اور نو آموز اطباء کرام کو علم کی روشنی پہنچاتے رہیں. اسی کے ساتھ میں اپنے اگلے مقرر محترم جناب حکیم محمد یاسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں. اپنے موضوع سردیوں میں ہونے والے موٹاپے کے اقسام اور اسباب اور علاج بیان فرمائیں. محترم جناب حکیم محمد یاسر صاحب. یاسر صاحب اگلی دفعہ. اچھا میرے چلو آپ کر لیں گے. آپ آپ بیٹھیں. آپ کریں. چلو آ گئے تو کوئی گل نہیں. جی ہم دعوت دیتے ہیں استاد محترم حکیم یعقوب اطہر صاحب کو، وہ آئیں اور اپنے علم سے ہمیں نوازیں. استاد محترم یعقوب اطہر صاحب. موضوع تو بہت سارے ہیں. آج جو ابھی تشنا کام کچھ چیزیں رہ گئی ہیں. میرے محترم پہلے مقرر جو تھے انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہے نا اجاگر کی ہیں، واضح کی ہیں. انبساط، انقباض، اس پہ بھی بات ہوئی ہے. اور ایک انہوں نے جو موضوع چھیڑا تھا اسٹیم سیل کا. چلو اس کے لیے میں تھوڑی سی کرنے کے بعد پھر آتے ہیں اپنے موضوع پر. تو اسٹیم سیل، یہ سر، تو اسٹیم سیل کی جو بات ہے، یہ بون میرو کے اندر ایک سیل ہوتا ہے، ایوالانچ ایکشن کرتا ہے، اپنے مثل پیدا کرتا جاتا ہے. نہ یہ وائٹ سیل ہوتا ہے، نہ ریڈ سیل ہوتا ہے، نہ یہ بلڈ پلازما ہوتا ہے، نہ کنیکٹو سیل ہوتا ہے، لیکن تمام سیل کی پیدائش کا جوابدار یہ سیل ہے. ہوتا بون میرو میں ہے. اور یہ آرڈر کہاں سے آتا ہے؟ دیکھو نا، کوئی چیز کرتی نہیں ہے، یہ فیل کرتا نہیں ہے، اس سے فیل کروایا جاتا ہے. اور اس کو کروانے کے لیے جو چیز حرکت میں لاتی ہے اس کو کہتے ہیں ہائپوتھیلامس گلینڈ. دماغ کے اندر ایک گلینڈ ہے، ہائپوتھیلامس گلینڈ کہتے ہیں، جو آپ کے جسم کی تمام کارکردگی کا وہ جوابدار ہے. تو ہائپوتھیلامس گلینڈ جو ہے نا وہ آرڈر دیتا ہے. اور مزے کی بات آج آپ کو ایک اور یہاں کر دوں کہ بون میرو ایک قسم کا نہیں ہوتا. بون میرو بھی 3 قسم کا ہے. ہڈیوں کے اندر ہڈیوں کا گودا 3 قسم کا ہے. کبھی پسلی کی ہڈی، عید چھبرات پہ، عید پہ آپ بکرا ذبح کرتے ہیں، کبھی غلطی سے پسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو آپ اس میں دیکھیں جو بون میرو ہوتا ہے سرخ کلر کا ہوتا ہے. اس طرح لانگ بون میں جو ہے وہ ہلکا زردی میل ہوتا ہے اور سفید بھی ہوتا ہے. کولے کی ہڈیاں، دوسرے ہڈیاں ہیں، بازو کی ہڈیاں ہیں، ان میں بھی ہوتا ہے. اور اس کی کلر اور ہوتے ہیں. 3 قسم کا اس کا کلر ہے. جو سیل پیدا کرنا ہوتا ہے وہ آرڈر دیتا ہے دماغ اس سیل کے اندر یا اس بون کے اندر، جو بون میرو ہے اس کے اندر جو اپنا سٹیم سیل ہوتا ہے اس نے حرکت میں آنا ہے اور پیدا کر دینا ہے. جس طرح الکلی ایسڈ سالٹ کو چیک کرنے کے لیے ایک پیمانہ ہے ہمارے پاس، ہم اسے بولتے ہیں پی ایچ، پاور آف ہائیڈروجن آئن. ٹھیک ہے، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ چیز الکلی ہے، یہ ایسڈ ہے، یہ سالٹ ہے. اسی طرح ایک پیمانہ ہے جو سیل کے میمبرین
देखेंगे सारे जितने भी सेल हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, बैरूनी शेल होता है, ये बैरूनी झिल्ली जो होती है वो सारी की सारी उजलाती होती है, गोश्त की होती है, प्रोटीन की होती है। तो हम कैसे कहेंगे कि ये जो सेल है ये वाइट सेल है, रेड सेल है, एपिथेलियम सेल है? उसकी पैमाइश के लिए एक पैमाना है, उसको कहते हैं PKA। वो बताता है कि ये रेड सेल बनेगा, ये वाइट सेल बनेगा या ब्लड प्लाज्मा बनेगा। और मजे की बात आज एक और बता दूं, जितनी भी राख होती है, जलने के बाद जो राख होती है वो अल्कलाइन होती है, उसकी pH अल्कलाइन होती है। इसीलिए कुश्ता साहब जो भी उसमें चीज बनाएंगे, मैं आज एक अर्ज कर दूं कि साबर साहब फरमाते हैं कि अगर आपने किसी चीज को कुश्ता करना है, अगर अल्कली है तो एसिड से कुश्ता करें, अगर वो एसिडिटी तासीर रखती है तो साल्ट से करें, अगर साल्ट रखती है तो अल्कलाइन से करें। अगर आप उसको कायम करना चाहते हैं, जारी करना चाहते हैं या कायम करना चाहते हैं तो आप उससे पिछले में करेंगे। इसलिए जितनी भी चीजें खार एसिड वाली चीजें हैं या जहरें हैं, उनको खार के अंदर कुश्ता किया जाता है। ये तो थी पिछली बात। तो अभी आपके सामने ये भी बात होगी कि बोन मैरो भी 3 किस्म का है। तो अल्कली, एसिड, साल्ट, जितनी भी जो जलने के बाद चीज़ हमारे हासिल आती है हमें, उसे बोलते हैं खार। ठीक है। तो आज का मौजू जो है इस मौसम के लिहाज से, मौसमी असरात की वजह से जो बीमारियां पैदा हो रही हैं, थोड़ा सा उनका जिक्र होगा। ये बरसात का मौसम, सारे के सारे जितने भी गीत गाए हैं औरतों ने, ये दूसरों ने, तीसरे ने, हाय हाय ये मजबूरी, बरसात के ये वक्त, पता नहीं कितने गाए हैं, लेकिन बड़ा वाहियात मौसम होता है। उनके लिए होगा, लेकिन मर्दों के लिए ये ठीक नहीं है। ठीक है। उनके लिए इसलिए ठीक होगा कि उनकी जिस्म के अंदर नाजुक हैं, उनके जिस्म के अंदर रतूबात की ज्यादती होती है, इसलिए उनको कुछ नहीं कहता। लेकिन जिनके जिस्म में खुश्की होती है उनके लिए तो ये वाहियात मौसम है, अच्छा मौसम नहीं है। क्यों सर जी? तो आज बात हम करते हैं कि मौसम के हिसाब से आबो हवा। आज बात जिक्र हुआ था, मेरे मोहतरम हकीम साहब, असलम साहब ने बात की थी मौसम की, तो आबो हवा की। ये तमाम के तमाम इंसान के जिस्म के अंदर होते हैं मौसम। ये तमाम के तमाम मौसम जो है जिस्म के अंदर होते हैं। बाकी किसी भी जगह की आबो हवा का जो इन्हिसार है वो मुख्तलिफ चीज़ों पर है। ख़ते इस्वा से फासला, सतह समुंदर से फासला, सतह समुंदर से बुलंदी, हवाओं का रुख, पहाड़ों का रुख, ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं आबो हवा पर। तो आबो हवा जो है ये किसी ख़ास वक्त में ख़ास मकाम का जो है वो उन्होंने जिक्र किया था कि उसके टेम्परेचर, उसके में हवा का दबाव, हवा की नमी, उसमें साइक्रोमीटर से चेक करते हैं हवा में नमी कितनी है, बैरोमीटर से हवा का दबाव चेक करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये उसके मौसम पे असरअंदाज होती हैं। और मौसमों की औसत का जो नाम है वो है आबो हवा। और आबो हवा का अनुसार मैंने बोला है कोई 5 चीज़ें बताई हैं। छठी चीज़ ये होता है कि बहरी रोवें भी जो है ना, समुंदर के अंदर जो धारें हैं, कुरान मजीद में जिक्र है कि एक समुंदर होता है, उसमें मीठा पानी भी होता है, दूसरा पानी भी होता है, इसी तरह रंगदार पानी भी होता है। हमने देखा कि स्याह रंग का पानी भी आ रहा है, नीले रंग का पानी भी आ रहा है, दोनों अलग अलग बह रहे हैं। तो हमने तो ऐसा भी देखा है। तो इसी तरह इंसान के जिस्म के अंदर भी मौसम मुख्तलिफ होते हैं। और सबसे पहले जो असरअंदाज चीज़ होती है वो दिल पे असरअंदाज होती है, नफ्सियात पे असरअंदाज होती है, दिमाग पे असरअंदाज होती है। याद रखें। उसकी एक मिसाल देता हूं कि एक शख्स उस फेल को करता नहीं है लेकिन किसी को गाली देता है, मुंह से अल्फाज निकले हैं, उसके खून पर पहले उसके दिमाग में, उसके दिल पर असर हुआ है। उससे दिल पर जब असर हुआ है तो उसके खून ने इतना जोश मारा है कि कत्ल तक कर देता है। दूसरी तरफ
बाबा जी हैं या मेरे तरह आदमी है, हमें पकड़कर कोई बाजू से पकड़कर सड़क पार कराता है तो हम उसे दुआ देते हैं ना, उसका भी उतना ही असर होता है उस पर, वो फील करता है और असर होता है, और वो उसे फील भी करता है। लेकिन होता ये है कि खैर और शर में फ़र्क है, शर जल्दी फैलता है और खैर आहिस्ता आहिस्ता फैलता है। तो इसी तरह मौसम की असरात भी जो है ना, सबसे पहले इंसान के जिस्म पर मरतब तब होते हैं, पहले दिल पर दिमाग पर मुतासर होते हैं, फिर तो वो जिस्म पर मुतासर होते हैं। जिस्म पहले मुतासर नहीं होता है। नमूनिया कहाँ होता है? देखो ना, सर्दी के मौसम में नमूनिया होता है, तो गर्मियों में भी नमूनिया होता है, उसे कहते हैं डबल नमूनिया हो गया। लेकिन एक्चुअली वो नमूनिया नहीं होता है, वो सोजिश होती है फेफड़े की गुदी तहरीक से। ठीक है, तो बात कर रहे थे कि मौसम के लिहाज से मौसम कैसे बनते हैं। यहाँ कुछ अतबा अकराम बैठे होंगे जो नजरिए से वाबस्ता नहीं थे, जिन्होंने तिब दूसरी पढ़ी, वो बड़ी देर तक दुनिया में सबसे बेस्ट जो दवाई समझते थे वो तरफला था, अरे बेड़ा आमला। ये कब तक असर अंदाज हुआ? जब तक लोगों की तबीयत असाबी थी। मैं आज से पीछे चलता हूं, कुछ 100 साल पीछे या 70 साल पीछे, 80 साल पीछे, ये जितना इलाका था, लोग भेड़ बकरियां पालते थे, भैंसे पालते थे, दूध पीते थे, घी खाते थे और दूध से बनी हुई चीजें इस्तेमाल करते थे। तमाम के जिस्म जो थे उनके अंदर रतूबात की ज्यादती थी, क्योंकि रतूबात का इलाज जो है खुश्की पैदा करना है, और ये तीनों फल खुश्क हैं। ये उसका इलाज था, नजर जुकाम का इलाज था, वबाई अमराजों का इलाज था। कब तक रहा है? सन 1945 तक। सन 1945 में क्या हुआ भाई? फजा को क्या हो गया? जब हिरोशिमा नागासाकी पर एशिया के अंदर लिटिल बॉय का हमला हुआ, एटमी हमला हुआ, तो फजा के अंदर जो असरात मरतब हुए वो सौदावी अमराज पैदा करने वाले थे। आज भी वहां अंधे लूंडे लंगड़े लोग पैदा हो रहे हैं। फजा के अंदर खुश्की हो गई, ये चीज जो थी हरड़ बेड़ा आमला नकारा हो गई। सन 1952 में रशिया ने टंडरा के खित्ते के अंदर अटामिक हाइड्रोजन बम का धमाका किया। जितनी टंडरा के खित्ते की बर्फ थी वो पिघल कर स्टेप के मैदानों में आ गई। किसी ने अगर ज्योग्राफिया पढ़ा तो उनको पता होगा स्टेप के मैदान कहां है। और जितनी को हिमालय की बर्फ थी पिघली, कुछ चाइना की तरफ, पाको हिंद की तरफ आ गई। पानी की ज्यादती होगी, रतूबात की ज्यादती होगी, जैसे बरसात का मौसम अब है। हैजे की वबा फैली, वबाई अमराज फैले, हशरातल अर्ज जो थे ये ज्यादा पैदा हुए, मच्छर ज्यादा पैदा हुआ, हैजे की वबा फैली। बाजार के अंदर बर्फ नहीं बिकने देते थे, बुजुर्गों से पूछ लो बेशक। तार नहीं बेचने देते थे, तरबूज नहीं बेचने देते थे। आजकल कोई नहीं पूछता है। फिर ये रतूबात की ज्यादती होगी तो फिर यही हर्बल में तरफला जो था ये पहलवान था, ये बीमारियों का इलाज था। लेकिन कब तक? सन 1972 तक। सन 1972 में क्या हुआ? इंडिया ने पोखरान के इलाके में, राजपूताना में एटमी धमाका कर दिया। किस चीज का किया? सबसे पहले जो हुआ था वो था प्लेटिनम का। फिर क्या किया? हाइड्रोजन का धमाका हुआ। ये दोनों धमाके जो हुए थे, इनके असरात जो मरतब हुए, पहले के जो थे वो तो अजलाती थे, दूसरे के जो थे असाबी थे। ये तीसरा धमाका जो हुआ, इससे पहले आपने कभी हेपेटाइटिस का नाम नहीं सुना था। बहुत कम जिगर का अमराज था, सोजिश जिगर के अमराज बहुत कम थे। ये धमाका जब हुआ, ये प्लेटिनम का, यूरेनियम का धमाका था, प्लेटिनम का नहीं था। यूरेनियम में ये खसूसियत पाई जाती है कि हरारत बहुत ज्यादा है।
जिस चीज में हरारत पाई जाएगी हम उसे कहेंगे कि गुदी तहरीक का हामिल है। लोग रात को सोते थे, सुबह जब उठते थे आंखें सूजी हुई होती थी, आंखों की बीमारियां फैल गई। कराची में पहले सबसे पहले वबा जो थी हेपेटाइटिस की आई और सारे पाकिस्तान के अंदर फैल गई और ये हेपेटाइटिस की बीमारियां शुरू हो गई। बहरहाल मेरा ये जिक्र करने का ये था कि आपको इनसे आगाह कर दिया जाए। तो अभी जो बरसात का मौसम है, साबर साहब फरमाते हैं कि ये 5 नंबर की तहरीक का मौसम है कि बरसात के मौसम के अंदर अगर आपने किसी को 5 नंबर दवाई देनी है तो उसके साथ 3 नंबर दवाई जरूरी है, लाजमी है। कहीं दिल तहलील की हालत में चला जाए और आदमी की डेथ वाकया ना हो जाए तो उसके लिए तुलसी जरूरी है, एसिड जरूरी है, कार्बन उसके लिए जरूरी है। तो मेरे भाई मेरे मोहतरम, ये जो मौसम आया है इसमें 3 किस्म की बीमारियां हैं। एक तो वबाई अमराज है जैसे हैजा है, रतूबती, इनसे बचना होगा। इनसे बचने के लिए आपको दालचीनी लौंग का कावा इस्तेमाल करना होगा। और याद रखें आप तबीब हैं, जब भी किसी शख्स को 5 नंबर की दवाई देते हैं उसको साथ 3 नंबर की दवाई दिल की ताकत के लिए जरूर देनी ताकि बैलेंस रहे। भाई ने बात की थी अम्बसात की और इनकबाज की और स्टेम सेल की, वो मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया। मैंने कहा भाई ये बोन मैरो की बात भी हो जाए। और मज़े की बात है कि दोनों सेल, जब रेड सेल टूटता है वो भी अर्जी मादे में चेंज होता है, जब प्लेटलेट टूटता है वो भी अर्जी मादे में चेंज होता है। ठीक है जनाब। तो जो चीज़ जलती है, जलने के बाद जो है वो अल्कलाइन बन जाती है, अर्जी माद, ठीक है, अल्कली बन जाती है, खार बन जाती है। और जितनी भी राख है सारी की सारी जो है ना अल्कलाइन है। बात कर रहे थे कि ये बात हमने जाहिर रखनी है। उसके बाद दूसरा अमराज जो है इस मौसम में जो सबसे बड़ा होता है वो मक्खी और मच्छर के पैदा होने से। मक्खियों से बचाव करें, कै हो जाएगी और जरासीम की इंतहाई पैदाइश होती है इस मौसम में जिस्म। अच्छा, आज एक बात और आपको बता दूं कि हरारत दाफा तफन है, ये याद रखें। लेकिन कौन सी हरारत? जिसके साथ कार्बन शामिल हो। मई और जून के महीने में हर चीज जल जाती है और इस महीने में हर चीज हरी हो जाती है। इसके अलावा इस मौसम के अंदर ये जो मौसम जा रहा है जिल्द के अमराज ज्यादा होंगे। पुराने से पुराने जख्म जो है उनके अंदर रतूबत की वजह से फिर पस पड़ जाएगी, इसको भी मद्देनजर रखें। तीसरी चीज जो है इस मौसम के अंदर मलेरिया बुखार का होना, क्योंकि मच्छरों के काटने से कहते होते हैं, लेकिन साबर साहब फरमाते मेरी मलेरिया कोई बुखार नहीं। ठीक है, मलेरिया कोई बुखार नहीं। साबर साहब फरमाते हैं मलेरिया कोई बुखार नहीं, और उसके साथ पूरी पक्की किताब है और इसका बताया है कि मलेरिया होता क्या है, खून के अंदर क्या इसके तगैयर आते हैं। और ये आप समझ लें कि ये सारे का सारा मर्ज जो है ये गुदी तहरीक का हामिल है। मलेरिया गुदी तहरीक में होता है। और आपको एक मैं और असूल बता दूं कि हमें सर्दी कब लगती है, गर्मी कब लगती है। अगर हमारे जिस्म का टेम्परेचर डाउन है तो हम हरारत वाले एरिया में है तो हमें गर्मी लगेगी। अगर हमारे जिस्म का टेम्परेचर हाई है और हम ऐसे इलाके में जहां सर्दी है तो हमारे जिस्म के अंदर सर्दी दाखिल होगी, हरारत खारिज होगी। हमने कभी ये ख्याल ही नहीं किया कि हमें सर्दी कैसे लगती है, गर्मी कैसे लगती है। शरबत ठंडा नहीं होता है, चीनी ठंडी होती है। क्यों जी? यार ठंडी नहीं होती है, चीनी गर्म होती है। सारे इलाके के लोग कहते हैं चीनी गर्म होती है। और जब आप शरबत बनाते हैं, गर्मी का मौसम होता है, मैं आज आपको एक मिसाल देता हूं। गर्मी का मौसम होता है, आपको शदीद प्यास लगती है, प्यास लगती है, हरारत ज्यादा होती है जिस्म के अंदर। आप ठंडा पानी पीते हैं, दिल को सुकून मिलता है, कल्ब तस्कीन में चला जाता है। और होता क्या है, आपके जिस्म के टेम्परेचर को ये शरबत जो है हाई कर देता है, बाहर का टेम्परेचर। और जब आपके जिस्म का टेम्परेचर एक होगा तो आपको ना गर्मी लगेगी ना सर्दी लगेगी। तो आप कहेंगे ये शरबत बहुत ठंडा था, बहुत अच्छा था।
ठीक है। बहरहाल ये याद रखें, जिम्मेदार लोग जानते हैं कि जब सर्दियों के मौसम में वो पानी लगाने के लिए जाते हैं, जब जूता उतार के वो पानी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, उनकी टांगों का टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर एक हो जाता है, फिर ना उनको गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है। ठीक है, ये सादा सादा सी बातें होती हैं और बाजार, लेकिन मैंने कहा चलो बयान कर दें। अच्छा, अभी रह गया मलेरिया। मलेरिया जो है, इसके लिए आप जब भी आप बुखार को तोड़ना चाहें, आज मैं आपको एक बुखार का नुस्खा बताता हूँ, ज़िंदगी में आप काम ले लें। चाहे हड्डियों का बुखार है, चाहे दुनिया का कोई भी बुखार है, बुखार को कहते हैं कि हरारत गरीबा का बढ़ जाना। जब जिस्म के अंदर खमीर पैदा होगा, उससे भी हरारत गरीबा बढ़ती है। आपने आजकल कहीं ये जो ढेर पड़ा हुआ है ना, आप पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, गोबर का ढेर पड़ा हुआ है, उसके नज़दीक से गुजर के दिखाएं मुझे। उससे इतनी हीट खारिज हो रही होती है कि आदमी जो है ना, बुखारत खारिज हो रहे होते हैं। और एक बात भाई ने बोली थी, और आज मैं एक बात करूं कि हर जिस्म जो है वो हरारत खारिज करता है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड है। उससे जो भी चीज़ हरारत गर्म होगी, टेम्परेचर अबव होगा, उसके जिस्म में हरारत की लहरें खारिज होती हैं, और उन हरारत की लहरों से किसी को इमेज भी फॉर्म किया जा सकता है, उससे अक्स भी बनाया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है, साए से भी अक्स जो है ना लिया जा सकता है। जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, जदीद टेक्नोलॉजी है, तो मैं उनका जिक्र अभी नहीं करूँगा, ना ही वो करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी पहुँच अप्रोच वहाँ तक नहीं है। लेकिन अगर रात को देखने वाले हालात जितने भी हैं आजकल आ रहे हैं, तो वो इस तर्ज पे बने हैं कि जिस्म जो हरारत खारिज कर रहा है, उसको इकट्ठा करके इमेज फॉर्म हो जाता है। ठीक है, चांद और सितारों की माइन्यूट रोशनी जो किसी चीज़ पर पड़ती है, और वो तगैर रिफ्लेक्ट होती है या इनकास होता है उसका, और उसके लिए भी आलात हैं, वो भी उसकी तस्वीर जो है ना हज़ारों गुना जो है ना लाइट जो है ना, लाइट को इलेक्ट्रॉनिक इमेज में चेंज कर देते हैं, हज़ारों जो है ना रेपिटेक्शन होता है उसके अंदर, तो उसे एवलांच एक्शन कहते हैं। एवलांच पता क्या होता है? अगर पहाड़ की चोटी से एक पत्थर गिराएं तो नीचे आते होते कितने पत्थर बढ़ जाते हैं? वो आता है, दूसरे पत्थरों को धकेलता है, वो 10-15 नीचे जब आते हैं तो करोड़ों के हिसाब से होते हैं। ऐसे ही जो स्टेम सेल है, ये एवलांच दिमाग के हुक्म से एवलांच एक्शन करता है, अपने जैसे हजारों जो है ना सेल बनाता है, जैसे रेड सेल, वाइट सेल और दूसरे सेल बनते हैं। तो बात से बात निकली थी। तो ये जो है मौसम, इसके अंदर ये ख्याल भी करना है कि मच्छर से बचाव के लिए आपने अपने मच्छरदानी वगैरह वो तो जो इस्तेमाल करते हैं, मलशन इस्तेमाल करते हैं, बहुत से तरीके हैं। लेकिन मैं जो बुखार के लिए मैं एक नुस्खा बता रहा था, कोई बुखार हड्डियों में चला गया है, गुदी तहरीक का बुखार है और टाइफाइड है, नहीं जा रहा, सिर्फ 2 खुराकें देनी है, तीसरी खुराक नहीं देनी है। नशातर अच्छी किस्म का लें। नशातर की पहचान ये है कि वो मोटा होगा और उसका रंग जर्द होगा, पूरी बोरी में से सिर्फ पाव या 1.5 पाव निकलेगा। अगर खरीदना चाहते हो या लेना चाहते हो तो देख लेना। इस दफ़ा मैं नहीं लाया हूँ, अगर मेरे पास तो पड़ा हुआ आधा किलो तो मैं आपको दिखला देता कि इसको कहते हैं, ये है नशातर। सबसे बड़ी जो हमें मेडिकल में, या मेडिकल वालों की तो बात नहीं करता हूँ, अपनी बात करता हूँ कि हमें जो अशिया मिलती हैं, आप पंसारी के पास चले जाएं, एक नई चीज़ का नाम लिख दें जो दुनिया में नहीं है, वो आपको पूरी करके दे देगा, यकीन जाने। मैं आज मलिक खैरुद्दीन डोगर साहब की एक बात बताता हूँ। एक मरीज़ आया, वो थोड़ा सा हकीम भी था, उसने कहा जी मेरा मरीज़ है, आप मुझे नुस्खा लिख दे, मैं ले लेता हूँ। उन्होंने नुस्खा लिख दिया, उसने जाकर ले लिया। जब लेकर उसने कहा चलो पूरा क्या बनाना, थोड़ा सा बनाता हूँ। वो थोड़े थोड़े करके उसने बनाया। जब बनाकर मरीज़ को पहली खुराक दी, मरीज़ जो फुड़क गया। उसको फौरन उठाया, अस्पताल ले गए। वो एड़ियों को घुटने रगड़ रहा था। जब घुटने रगड़ रहा था ना, तो बड़ी उन्होंने उसको ट्रीटमेंट किया, बच गया। वो भागा डोगर साहब के पास आया। डोगर साहब ने पूछा हाँ भी क्या दिया? तो कहते हैं जी आपने जो मुझे लिखा जद्वार खताई वो मैंने दिया। उन्होंने कहा दिखाओ मुझे कौन सा जद्वार खताई। जब देखा तो यकीन जाने वो जद्वार खताई नहीं था, और वो आपको पता होगा कि वो क्या था, मीठा तेलिया। ठीक है, मीठा तेलिया था।
उन्होंने कहा आओ मेरे साथ। पंसारी के पास चले गए, उसे गले से पकड़ा, ये आपने दिया है? हाँ। ये क्या लिखा था? ये जद्वार लिखा था। ये जद्वार है? उसने कहा ये थोड़ा सा खा कर दिखाओ। गले से पकड़ा, उसे कहा मरीज जो है ना मर रहा है, ये तेरे जिम्मे है। वो मिन्नतें करने लगा, बड़ी मुश्किल से उसकी जान छूटी। मलिक खैरुद्दीन डोगर साहब ने कहा कि खबरदार आइंदा इनसे कोई चीज़ नहीं लेनी है। ठीक है, तो बात यह है कि पहली सबसे हमारी नाकामी की वजह यह है कि हमें चीज़ें खालिस नहीं मिलती। कोशिश करें, हमें तो सुकूनियत मिलना जो है ना, मैं 3-4 साल से मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं इधर से एक बाऊ पंसार सरोवर है उससे मंगवाता हूँ, वो कोई 75% काम करता है। ठीक है, तो मैं उसी पर इक्तफा कर लेता हूँ। तो बात कर रहे थे कि खालिस चीज़ की, तो आपने निशादर खालिस लेना है। जितना निशादर का वजन है उससे दुगना आपने शीर मदार खर्च करना है। शीर मदार तो आपने देखा होगा, फारसी में लिखा होता है मदार, अरबी में लिखा होता है अशर, अक पंजाबी जो कहते हैं। ठीक है, तो सिंधी में भी इसका नाम है। तो ये देख ले कि शीर मादर ना पढ़ लेना मदार को। और मैंने एक दफ़ा हम वजन लिख दिया तो उसको हमजून पढ़ते रहे, वो पूरे बाजार में प्रसारियों से हमजून नहीं मिला है। तो मैंने फिर कहा कि एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरम कर दिया, हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। कभी कभी ऐसा भी होता है, जो लिखे सलीस ज़बान में नुस्खा लिखें। ठीक है, तो शीर मदार दुगना इसमें खर्ल करके इसको 10 किलो की आग दे देनी है, कूजे में बंद करके। ये कुश्ता हो जाएगा, कुश्ता नहीं होगा बल्कि सख्त हो जाएगा। तो इसको पाउडर कर ले, 1 ग्राम इसकी खुराक है। अगर बुखार चढ़ा हुआ है तो 4 घंटे के बाद बुखार नहीं होगा। अगर बुखार हड्डियों के अंदर है तो 4 घंटे के अंदर एक दफ़ा उसे बुखार चढ़ेगा, दूसरे कैप्सूल से उतर जाएगा। ठीक है, तो ये जो इस मौसम में बुखार है उसके लिए ये बड़ा अहम है। ठीक है, तो मलेरिया के लिए भी अहम है। ये जितने भी हैं 10 किलो की, 50 ग्राम के लिए 10 किलो काफ़ी है। जीरो का दे दे, डबल जीरो का दे, क्योंकि जीरो वाला तो हजम कर जाते हैं, हमारे हाजमे बहुत अच्छे हैं। हमारे जिसमें ज़हरें इतनी गई हुई हैं कि हम उनको जो है ना तदारक नहीं कर सकते। अभी आते हैं इस मौसम की तरफ। इससे जो पहले मौसम, भाई पहला एक ही कैप्सूल देना है। अगर बुखार चढ़ा हुआ तो उतर जाएगा, अगर बुखार चढ़ा हुआ नहीं तो बुखार बाहर आएगा। जब बाहर आ जाए 3 से 4 घंटे बाद दूसरा कैप्सूल देना है, बस इतना ही देना है, इससे बाद नहीं देना है। तो बात कर रहे थे, जहरों की बात कर रहे थे। तो भाई, और भाई ने बोला था खज़ां का मौसम, खज़ां का मौसम अभी आया नहीं, अभी तो जो है ना बरसात मौसम है। इस मौसम के अंदर आपने देखा होगा कि जितनी खुश्की है वो ख़त्म हो गई है। फ़ज़ा के अंदर जितनी खुश्की थी ख़त्म हो गई है। वो घास के गट्ठे जो बांध के रखे हुए थे वो सब्ज़ हो गए हैं। वो क्यों हो गए हैं? अल्लाह ताला हर चीज़ पानी से पैदा की है, और साथ थोड़ी सी हरारत है। हरारत और रतूबत जो है ये 5 नंबर तहरीक, आपके खून की तहरीक भी 5 नंबर होती है, हरारत और रतूबत होती है। आज मैं एक और बात आप पे इंकिशाफ कर दूं कि साबर साहब ने कहा कि ये 5 नंबर दवाई वो है जो आपके जिस्म के अंदर सालिया रतूबत और सालिया हरारत पैदा करेगी। जब सालिया हरारत और सालिया रतूबत पैदा होगी आपके जिस्म के अंदर, आपका खून सालिया होगा, आपका खून इतदाल पे होगा, उसकी pH 7.2 होगी, और आपके जिस्म के अंदर कोई बीमारी नहीं रहेगी। आपका गुद्दे नाकला का फेल तेज होगा, गुद्दे जाज़बा का फेल कंट्रोल हो जाएगा, और जो मादे आपके जिस्म के अंदर रुके हुए खारिज हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम के अंदर पसीना आता है, और पसीना आना, शेख अबू अली सीना फरमाते हैं कि बीमारी कब होती है? जब आपके जो मखरज हैं उनका फेल बिगड़ जाता है। अगर आपके मखरज का फेल कानून फितरत के मुताबिक है, आपके जिस्म के मुताबिक है,
तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपके जिस्म के अंदर कोई बीमारी नहीं रहेगी। ठीक है, तो मलिक खैरुद्दीन डोगर साहब कहते थे कि आपके जिस्म के अंदर जितनी भी जहरें हैं उनको जब आप गुद्दे जाज़बा का फेल नहीं, गुद्दे नाकला का फेल तेज करेंगे, वो सारी की सारी खारिज हो जाएंगी और सेहत बहाल हो जाएगी। आप देख लें, पित्ते के अंदर पथरी है, उजलाती तहरीक में पैदा होगी। जब भी किसी चीज का टेम्परेचर डाउन होगा, अपने ओरिजिनल पर नहीं रहेगा, जब दूध गर्म हो रहा होता है उस पर बलाई नहीं आती है, और जब दूध का टेम्परेचर डाउन होता है उसके ऊपर बलाई आ जाती है। इसी तरह जब आदमी की उजलाती तहरीक होती है, फैटी लीवर होता है और जिगर के एंजाइम जो है पूरे नहीं बन रहे हैं, हरारत पूरी नहीं हो रही, उस वक्त जिस्म के अंदर जो जहर पैदा होते हैं वो होते हैं आपके जिस्म को नुकसान देने वाले। आपके जिस्म के 90% जो बीमारियां हैं फैटी लीवर से शुरू होती हैं। शुगर होगी, फैटी लीवर से शुरू होगी, क्योंकि जिगर का फेल दुरुस्त नहीं है और उसका मताहत जो है लबलबा है, उसका फेल भी दुरुस्त नहीं होगा, उसका फेल भी सुस्त होगा। इसी तरह जिगर का फेल सुस्त होगा, उस पर चर्बी चढ़ जाएगी, फैटी लीवर हो जाएगा और उसके रेशे सख्त हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे, कैंसर की तरफ चला जाएगा। भाई ये जो है, अभी बात कर रहे थे हम कि 2 जहर पैदा होते हैं उजलाती जिस्म के अंदर जब खुश्की का दौरा होता है। सौदा की बात कर रहे थे, और अर्ज करूं सर, वो जो सुर्खी मादा होता है, जो आपने खून अहमर का नाम लिया है, खिलते अहमर का नाम लिया है, सौदा हर चीज की 2 कैफियतें होती है, एक गलीज कैफियत होती है, एक लतीफ कैफियत होती है। जब लतीफ कैफियत होती है सौदा की तो रेड सेल बनते हैं, जब कसीर होती हालत होती है तो उस सौदा से आपकी हड्डियां बनती हैं। मैंने कहा चलो थोड़ी सी उसमें इजाफा कर जाए, बात एक ही है, लेकिन वो कहे ना तुम्हारा अबू आ रहा है तो बड़े खुश होते हैं, कहता है मां का खसम आ रहा है तो गुस्सा लग जाता, हालांकि बात एक ही है। बात उसने वही की है, मैंने उसका थोड़ा सा ना तहजीब के दायरे में रह के मैं बात कर दी है। तो मेरे भाई 2 जहरें उजलाती हैं। जब उजलाती असाबी तहरीक होता है तो खुश्की इंतहा पे होती है, और आज आपको बता दूं कि जब खुश्की की इंतहा होती है हरारत की इब्तदा होती है। जब खुश्की की इंतहा होती है तो हरारत की इब्तदा होती है। जब सर्दी की इंतहा होती है तो खुश्की की इब्तदा होती है। जैसे आपने पानी देखा होगा, बर्फ की हालत जो है ये इंतहा है खुश्की की। रतूबत खुश्क हो जाती है, बर्फ बन जाती है, बर्फ किसी के सर में मारे तो सर फट जाएगा, पानी मारे तो फटेगा नहीं। ठीक है, तो किसी चीज की 2 कैफियतें होती हैं, तो खुश्की की 2 कैफियत है। जब खुश्की के साथ सर्दी होती है, इंतहाई खुश्की होती है, तो उस वक्त जो जहर बनता है वो टीबी का जहर बनता है। टीबी किसी भी जगह हो सकती है, हड्डियों की टीबी भी हो सकती है, फेफड़े की टीबी भी हो सकती है, दिमाग की भी हो सकती है। ये एक इस्तिलाह है मेडिकल वालों की, हमारी नहीं है। हम कहते हैं कि उजलात जख्मी हो गए हैं, एसिड की ज्यादती से मसल जो है वो फट गए हैं, उनमें स्केड आ गया है, इनकबाज की हालत आ गई है। क्यों जी, ऐसा ही है। जब इनकबाज की हालत होगी तो उसके अंदर जितनी भी रतूबात है सेल के अंदर वो भी इनकबाज की हालत में होंगी और वो बाहर निकल जाएंगी। जब बाहर निकल जाएंगी, सेल के से बाहर निकलेंगी तो सेल सिकुड़ जाएगा। इसी तरह फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, इसी तरह सांस की नाली सिकुड़ जाती है, क्योंकि फेफड़े उजलाती तहरीक रखते हैं। तो वहां जख्म हो जाते हैं, फट जाते हैं, खून का अखराज शुरू हो जाता है, हम उस कैफियत को टीबी बोलते हैं। और जब हरारत पैदा करते हैं वो कैफियत खत्म हो जाती है। जितनी भी दवाइयां दी जाती हैं टीबी के लिए बिल्कुल गलत इलाज है, वो इलाज नहीं है। साबर साहब ने इसका इलाज आगे जाकर किया है। साबर साहब ने देखा क्या है कि उजलात के अंदर तहरीक है। बाज दफा ऐसा भी करना पड़ता है इमरजेंसी में
तहरीक वाली जगह को तस्कीन दी जाती है, लेकिन ये ज़रूरत के तहत है, कानून नहीं है। वही बात आ जाएगी सब्र साहब की कि अगर मरीज की ज़िंदगी को ख़तरा लायक है तो उज़लात को तहरीक दें, अगर मरीज नहीफ और लागर है तो गुदद को तहरीक दें, अगर मर्ज कोहना हो गया है, मजम्मन हो गया है, तो आप नर्वस सिस्टम को तहरीक दें ताकि उसके जिस्म में इम्यून सिस्टम हो, क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा हो। जैसे आज एक भाई ने बोला था कि बच्चा होता है, उसके जिस्म के अंदर इम्यून सिस्टम उसका काम कर रहा होता है, हड्डियों में लचक होती है। लचक क्यों होती है? रतूबत के बायस होती है, जो उसकी तस्दीक करती है कि बच्चा 100 दफ़ा गिरता है, कोई चोट नहीं लगती, कोई टूट फूट नहीं होती। आप एक दफ़ा करें तो जिस्म के अंदर टूट फूट हो जाती है और उठने के काबिल नहीं रहते हैं। ठीक है, बच्चे का 2-3 चीज़ें होती है बच्चे के जिस्म में। एक तो इम्यून सिस्टम उसका बहुत अच्छा होता है, दूसरा उसका नफ्से मुतमन्ना आन होता है, उसमें फिक्र फर्दा नहीं होता है, खबास जलालत नहीं होती है, चोरी डाका नहीं होता है, इसलिए उसके जिस्म के अंदर लचक होती है, हड्डियों में लचक होती है। जैसे जैसे जमीन से उगी चीजें खाते हैं, खुश्की की ज्यादती होती है, हड्डी सख्त होती जाती है। तो बात कर रहे थे, ये जहर जो है जिस्म के अंदर टीबी का जहर कहलाता है। तो इसको जब भी साबर साहब ने कहा है, पहले तस्कीन दी है, उसके बाद उसका तरीके से इलाज किया है। ये नहीं है उसका 4 और 5 नहीं, उसका अजराती गुदी और गुदी अजराती और गुदी असाबी में जाकर इलाज किया है। लेकिन पहले उसको जब कंट्रोल किया, जिस्म के किसी हिस्से से भी खून आ रहा हो, ये एक साबर साहब ने असूल बयान किया है, यहाँ पर रतूबत होगी वहां से खून नहीं आएगा, जहां पर खून आ रहा है वहां रतूबत खत्म होगी। जहां से खून आ रहा है वहां रतूबत नहीं होगी, रतूबत पैदा करें, खून रुक जाएगा। अगर किसी जिस्म के हिस्से से खून आ रहा हो, आपके पास कोई दवाई नहीं है, आप दाई पंडली पे बर्फ के टुकड़ा बांध दें, खून रुक जाएगा जहां से जी चाहे आ रहा है। क्यों सर जी, आपने देखा है तजर्बा करके? रुकता है ना वक्ती तौर पे, फिर उसका इलाज जिस तरीके से जी चाहे करें। दूसरा जहर है जिस्म के अंदर बवासीरी जहर। ये कोई लाजमी नहीं कोई पिट के रस से खून आए या वहां मसे हो जाए तो ये बवासीरी जहर है। जिस्म के किसी हिस्से भी मसा बनेगा बवासीरी जहर होगा। जिस्म के किसी भी हिस्से में मसा बनेगा बवासीरी जहर होगा। और मजे की बात, आज बवासीरी जहर की और दूसरे मसे की बात करूं, जो मसा नरम होगा वो गुदी तहरीक का होगा, याद रखें। जो मसा नरम होगा वो गुदी तहरीक का होगा, जो मसा सख्त होगा वो बवासीरी जहर का होगा। ये भी ख्याल रखना है, ठीक है। तो बात कर रहे थे कि बवासीरी जहर, ये जो कंठमाला होती है ये भी बवासीरी जहर होता है, याद रखें। कोई लाजमी नहीं, नाक में भी बवासीर हो जाती है, नवासीर बोलते हैं उसे, दांतों में से खून आता है। साबर साहब फरमाते हैं कि जब जिस्म के किसी भी हिस्से से खून आता है वहां खुश्की की ज्यादती होती है, ठीक है। तो अक्सर यही देखा गया है कि खून जो आता है मकद के रस से आता है या मसे हो जाते हैं। तो जहां भी ये बवासीरी जहर है, ये जहर बनता कैसे है, अभी ये बात करनी है। जब तक किसी चीज के अंदर, किसी खून के अंदर या किसी मादे के अंदर खमीर पैदा नहीं होता, जहर पैदा नहीं होता। जब किसी मादे के अंदर खमीर बन जाएगा, कार्बन की ज्यादती होगी, हरारत गरीबा बढ़ेगी तो जहर बनेगा। और ये जो बुखार होता है ना, ये हरारत गरीबा होती है, हरारत गरीबा होती है। तो हरारत गरीबा का इलाज जो है हरारत ग्रेजी से करना चाहिए, वही इसकी कामल है, वही इसका इलाज है। तो बवासीर के अलावा भी एक और चीज होती है, अक्सर औरतों में देखने में आती है, बाद मर्दों को भी होती है कि महीने में एक दफा ऐसे खून आता है जैसे बकरा ज़िबा कर दें। वो भी आकर आपको कहते हैं ये हमें बवासीर है, जरा नब्ज देख लिया करें, उनकी तहरीक गुदी उजलाती होती है, ठीक है। औरत को अगर आ रहा है तो औरत की तहरीक तो उजलाती होती ही नहीं है। अगर हो तो या वो बाज होगी
या उसे हैज आ रहा होगा, या हमला होगी, या उसके जिस्म के अंदर रसौली बन गई होगी। मैंने एक बात पिछली दफा की थी, अब फिर कर देता हूं कि जब भी औरत को लोथड़ों की शक्ल में खून आता है, हमारा तजर्बा है और इस पर बहुत से तजर्बात हुए हैं, तो हकीम फयाज साहब इस पे बहुत से तजर्बे किए हैं, जब भी खून आता है लोथड़ों की शक्ल में, उसके रहम के अंदर रसौली होती है, फतवा लगा दे, ठीक है। और जिस औरत को दवाई के बगैर हैज नहीं आता है, आप फतवा लगा दे कि तुम्हारे जो है बैजा नहीं बन रहे, ठीक है, उसके बैजा नहीं बनते हैं। तो बात कर रहे थे बवासीर जहर की, तो वो बवासीर का जहर नहीं होता, वो होता क्या है, ग्लैंड सिस्टम के अंदर खून जमा वो होता है, जब कब्ज होती है, लेट्रिन सख्त आती है, तो वो उसको प्रेस कर देते हैं, गुदद जो है ना वो इनकबाज की शक्ल में चला जाता है। जब इनकबाज होता है तो उसके अंदर जितने मादे होते हैं वो खारिज होते हैं, वो खून जब आता है तो ऐसे आता है जैसे ताज़ा खून बकरे का ज़िबा किया हुआ, ठीक है। तो मेरे मोहतरम उसका भी ख्याल रखें, उसको फिशर बोलते हैं, ठीक है। उसको आप कहेंगे कि गुदूद है एक, वो होता है। तो इसका इलाज जो जब भी आपने करना है बवासीर जहर का, गुदी उजराती और गुदी असाबी में करना है, और इसका इससे बढ़कर अगर करना है जब इससे कंट्रोल हो जाए, अगर कंट्रोल नहीं हो रहा, जल्दी कंट्रोल करना है, तो आपने अक्सीर वर्म देना है। अक्सीर वर्म से ये खून रुक जाएगा। उसके बाद इसका तरीके से इलाज करना है, फर्स्ट एड करनी है, उसके बाद तरीके से। ये जो है ना कि 3 नंबर के लिए 5 नंबर तहरीक दें, ये वक्ती तौर पर उसको फौरन ब्लॉक करेगा, लेकिन इलाज नहीं है। इलाज इसका वही है जो तरतीब से है, तस्कीन वाली जगह को तहरीक में लाएं। तो बाज़ दफ़ा मैंने बात की थी कि तहरीक वाली जगह को तस्कीन में बदलना होता है, तस्कीन देनी होती है, वहाँ पे खुश्की होती है, रतूबत पैदा करनी होती है। इसलिए साबर साहब ने वो जो त्रिया के टीबी है वो इसलिए दिया था, उसके देने की मसलत ये थी कि वहाँ पर तहरीक थी तो उसको उन्होंने तस्कीन में बदली किया। मोहतरम मैंने ख्याल मैंने काफ़ी टाइम ले लिया लोगों का भी। फिशर के ऊपर भी आपने बात करते जो आपने 4 नंबर का फरमाया था, औरतों की तहरीक, औरतों को अक्सर ये बीमारी होती है, होती कब है, किसी वजह से वो ऐसी ग़िज़ाएँ खा लेते हैं औरतें, चटपटी ग़िज़ाएँ तो जो खानी होती हैं वो नहीं, बल्कि इसके अलावा ग़िज़ाएँ खा लें। कौन सी, जैसे अभी ज़िचगी हुई है, ज़िचगी में उन्होंने उसको गर्म चीज़ें दी हैं, अखरोट वगैरह, ये वो सारी चीज़ें, गुदी असाबी ग़िज़ाएँ दी हैं, गुदी उजराती दी हैं, तो उनकी वजह से उनके गुदद जो है ना सोजिश में आ जाते हैं, ठीक है। तो वो गुदूद जो है जिसके अंदर ये मादा इकट्ठा होता रहता है, खून तो जिस्म के हर हिस्से में है, चाहे गुदद हो, चाहे असाब हो, चाहे उजरात हो, तो वो सख्त लेट्रीन, क्योंकि उस वक्त तो उनको बच्चे को दूध भी पिलाना होता है और भी काम करने होते हैं, तो साथ साथ उनके जिस्म के अंदर यूं ही हरारत बढ़ती है, तो वो कब्ज़ कितनी वजह से होती है आपको पता है। असाबी तहरीक में भी कब्ज़ हो जाती है, उजराती में होती है, गुदी में भी होती है। बाज़ दफ़ा गुदत पर सोजिश और वर्म आ जाता है, जब अंतड़ियाँ जो है ना उनमें सोजिश और वर्म आ जाए तो फुजला खारिज नहीं करती हैं, वो जो कुआड़ियाँ हैं वो उसको आगे नहीं धकेलती हैं, दूधी जो कफियत है वो पूरी नहीं होती है, इसलिए फुजला रुक जाता है, सुद्दे अख्तियार कर जाता है, और जब सुद्दा वहाँ से खारिज होता है वो उसको प्रेस कर देता है, दबाव होता है, प्रेस हो जाता है, खून आता है, तो ऐसे पता चलता है कि बकरा ज़िबा किया होता था, खून आ रहा है। तो औरत कहती है मुझे बवासीर हो गई है, तो आपके पास आएगी, आप बवासीर का इलाज, आप भी गुदी तहरीक की दवाएँ दे देंगे। तो ख्याल रखना, नब्ज़ देख लें कि अगर वो बाँझ है, ठीक है, अगर उम्र रसीदा है, हैज़ रुक चुका है, बाँझ हो गई है, तो फिर तो हो सकता है। हाँ, ये भी हो जाता है कि बाज़ दफ़ा हमल के दौरान भी खून आ जाता है, रहम से नहीं, इसी जगह से, और वो भी इसलिए कि वो गर्म ग़िज़ाएँ खा रही होती है, ठीक है, खुश्क ग़िज़ाएँ खा रही होती है। गुदूद तो औरत की तहरीक तो गुदी है, लेकिन ग़िज़ा खाने की वजह से फुजला जो है ना वो सख्त हो गया है, जब वो वहाँ से आएगा तो उसको दबाव देकर आएगा। मोहतरम है बर्स
सिल नहीं, ऐसा कहें बरस और बहक। क्यों जी? ऐसी बरस और बहक, सिल नहीं। और लिखा हो, गलत लिखा होगा, आपने कहीं पढ़ लिया होगा। लोग कहते हैं बैक ऐसे निशान होते हैं जिस्म पर सफेद कलर के, अगर उस जगह पर हल्का सा पंक्चर किया जाए, तफर्रक इत्तिसाल दिया जाए, तफर्रक इत्तिसाल दिया जाए तो वहां से जो खून निकलेगा ये अलामत है कि ये बहक है, बरस नहीं है। ठीक है। दूसरी जगह पर खून जिस्म से जिल्द की तरफ आता है तो खून जो है जहरीले मादे की वजह से, जहर की वजह से, ये लाजमी नहीं है कि वो असाबी जहर हो, खमीर बना हुआ हो, तुरशी तेजाब और जहर के अमल से गुजरे और किसी जगह पर खून के दाना है जो सुर्ख हैं उनको ख़त्म कर दे तो वहाँ रतूबतें इकट्ठी हो जाती हैं, जल्द का रंग सफ़ेद हो जाता है, उसको बरस बोलते हैं। ठीक है। और उसकी अलामत यह है कि वहाँ से खून नहीं निकलेगा, सफ़ेद कलर का पानी निकलेगा, जैसे वाइट कलर का पानी निकलेगा। ठीक है। इन दोनों का इलाज अलग अलग है। आपको सबसे पहली बात आपने जो याद रखनी है वो ये है कि अगर जिल्द की सफाई करनी है 4 नंबर से करनी है, अगर खून की सफाई करनी है तो 5 नंबर से करनी है। ठीक है। मेरा ख्याल है कि किस्सा मुख्तसर इसमें सारा चीज़ आ गई होगी। अब जो आपने फिर पूछना होगा, फिर अल्लाह खैर करे। मेहरबानी, शुक्रिया।